Hello dear students, hello dear champs. Welcome back to Phoenix EDU. I am your English teacher and we are continuing with our grammar series. With that, let's start with today's topic. And today happens to be a new day, a new topic, and therefore I've decided to go ahead with narration. And in narration, what do I mean? Because a lot of you are aware of it already. However, a lot of you do not realize that direct and indirect speech itself is known as narration. Okay? So apparently we are going to start with it. Also, the answers to your previous practice questions will be available in the comment section of the previous video. Please go and have a look. Give your answers a good check. Right everyone? So we are going to start with today's topic, which happens to be direct and indirect speech. I guess one of the many topics that a lot of students manage to do it but make silly mistakes. Right, so we are not going to go so much in detail. We are rather going to look at the rules of it and then we are going to proceed with the questions. Right, so I'll be starting from the very basic of it. ठीक है, बहुत basic से हम start करेंगे so that you do not ponder into your own world. गलतियाँ करते हैं छोटी छोटी हल्की गलतियाँ करते हैं बट वो हमारे मार्क्स जो हैं वो ज़ीरो कर देती हैं और वो ज़ीरो से हीरो का सफ़र यहाँ से शुरू होता है. ठीक है, वो ज़ीरो से हीरो हम यहाँ बनेंगे. यहाँ आज की क्लास में आज के बाद की जो 2-3 क्लासेस होंगी वो क्लासेस में आप बन जाएंगे ज़ीरो टू हीरो. अगर आप ज़ीरो नहीं हैं, ठीक है, लेट्स से यू आर अ 1, देन मे बी यू आर गोइंग टू स्कोर 4. बस stay connected, stay tuned. Right everyone, do not cut short in between. Now before we start, let's talk about what are direct and indirect speech. Where do we use it? तो बच्चों direct और indirect speech मेरे हिसाब से हम सब ना अब इतने बड़े हो गए हैं, हम सब मतलब even you as well, right? Now that you have grown up so far, I have a realization that you are already aware of how you are using it. However, you do not remember the rules for it, and that is why we are here. ठीक, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग हमारे स्टोरी राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम अपने स्पीच राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम अपने आर्टिकल राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम हमारे रिपोर्ट राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं एंड एन नंबर ऑफ प्लेसेस. इनफैक्ट हमारी ये कॉन्वर्जेसन डायरेक्ट हो रही है, आप जाके किसी और को बताएंगे तो वो आप इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट स्पीच में भी प्रेजेंट कर सकते हैं. बस बच्चों यही चीज़ आज हम आगे लेके चलेंगे. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच. बच्चों डायरेक्ट स्पीच का इंडिकेशन होता है. ठीक है, इंडिकेशन बहुत ही सिंपल होता है. जो भी हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है वो मोस्टली हमें डबल कोट्स में देखने मिलती हैं या हमें सिंगल कोट्स में देखने मिलती हैं. ठीक है, अब जो बच्चे रिपोर्ट राइटिंग या जो बच्चे आर्टिकल राइटिंग या जो बच्चे स्टोरी स्पीच ये सब में जा रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ओपनिंग वाला हमारा जो कॉमास होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, वो हमारे इन्वर्टेड होते हैं. ठीक है, ओपनिंग इज़ इन्वर्टेड और यहाँ जाके हमारा कॉमा हो जाता है सीधा. ठीक है, कोटेशन मार्क्स, वी कॉल देम कोटेशन मार्क्स. तो हमारा कोटेड स्पीच हमें मतलब हमारा डायरेक्ट स्पीच हमें ये बताता है कि वी हैव इन्वर्टेड कॉमास और रादर डबल कोट्स इन्वॉल्व्ड इन इट मोस्टली. ऑल्सो इन द रिसेंट डेवलपमेंट वी फाइंड नॉट ओनली डबल कोट्स बट ऑल्सो सिंगल कोट्स इक्विपिंग आवर डायरेक्ट स्पीच. Right everyone, so now we are going to start with parts of direct speech. How do we write it? Now have a look at this. He said I am eating. Right? Now within double quote you will have your quotation, punctuation mark, and that is your full stop in this case. Right everyone, so you have your parts in it. अभी part क्या है? इस पूरे part को हम कहते हैं reported phrase. ठीक? This is known as reported phrase. Also this part, right, this part is known as quoted speech or reported speech. ठीक है, so this is the speech. ठीक, तो हमारे पास कंटेंट हमारे डबल कोट वाला यहाँ पे दिया हुआ है और ये हमारा हो जाता है पार्ट. अब बच्चों ये पार्ट हमारे पास डिवाइडेड है.
जो हमारा रिपोर्टेड फ्रेज होता है, ये जो हमारा रिपोर्टेड फ्रेज है, इस रिपोर्टेड फ्रेज के पास में एक लिसनर होता है, ठीक है, फिर एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है. नाउ व्हाट इज आरवी? आई एम राइटिंग इट डाउन हियर. आरवी, इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ड. ठीक है, हमारे पास हमारा आरवी एंड देन वी हैव एन ऑप्शनल, sorry, this is not listener but the speaker, right? So we have a speaker, then reporting verb and a listener. Now presence of listener is not mandatory, ठीक है, so therefore we'll call it an optional listener. ठीक है, तो हमारे डायरेक्ट स्पीच के पास में दो पार्ट्स हैं, रिपोर्टेड फ्रेज एंड कोटेड स्पीच. रिपोर्टेड फ्रेज के पास में एक खुद का लिसनर होगा, सॉरी स्पीकर होगा, जिसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे हमारे डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड फ्रेज का. बच्चों कई सारी जगह पे आप देखेंगे दिस रिपोर्टेड फ्रेज इज ऑल्सो नोन एज रिपोर्टेड क्लॉज, विच इज़ ओके. ठीक है, टेक्निकली दिस शुड बी द आइडियल टर्म रिपोर्टेड क्लॉज, बिकॉज क्लॉज क्या है, जिसके पास हमारा सब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट हो. ठीक है, तो ये वाले के पास हमारे पास एक स्पीकर दिया हुआ है, एक रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है, और साथ ही साथ में हमारे पास एब्सेंस ऑफ लिसनर है. एब्सेंस है, यहाँ पे प्रेजेंस नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शनल लिसनर. इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? सो हमारे डायरेक्ट स्पीच के पास, आई रिपीट इट अगेन, एक रिपोर्टेड फ्रेज / रिपोर्टेड क्लॉज होगा, जो कि ये रहा ही सेड. एक कोटेड स्पीच होगी, कोटेड स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोट्स हमें देखने को मिलेंगे, और उसके अंदर हमारा जो भी कोटेड स्पीच है, जो स्पीच हम कोट करके बता रहे हैं. बच्चों जब भी हम डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे, हमें याद रखना है दैट वॉट एवर वी आर पुटिंग अंडर दोज डबल कोट्स, वी नीड टू रिमेंबर दैट इट मस्ट बी जस्ट एज द स्पीकर हैड सेड. ठीक है, जैसे ही जो भी हमारा स्पीकर बोल रहा है वही एज इट इज़ हमें प्रेजेंट करना होता है डायरेक्ट स्पीच में. वही इनडायरेक्ट स्पीच हमें लिबर्टी दे देता है दैट वी कुड मोल्ड, वी कुड चेंज द टेंस ऑफ वॉट एवर इज बीइंग सेड और वॉट एवर वॉज सेड. ठीक है बच्चों, अभी हमारे पास अगर रिपोर्टिंग वर्ब है, वी हैव अ रिपोर्टिंग वर्ब हियर. नाउ टेल मी वन थिंग, are we able to identify the tense of our reporting verb? क्या हम हमारे reporting verb का tense identify कर पा रहे हैं? Indeed so, right? So this said happens to be the verb in its past tense, right? So this said happens to be the verb in its past tense. बच्चों एक बार हम लोग फिर से एक और के साथ में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हमारे प्रेजेंस को. फिर से देखो, डायरेक्ट स्पीच में लेट्स से आई से कीप इंटरैक्टिंग. ठीक है, आई से कीप इंटरैक्टिंग. अगेन दिस हैपन्स टू बी आर RP, that is our reported phrase. This happens to be our RV, reporting verb. Now what is the tense of this reporting verb? Put it up in the comment section. Till then I'll go ahead with this. Now this is known as our quoted speech. So what is the tense of our reporting verb? It's present. Easy? Any doubts? चलो बच्चों प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड बिकॉज वील नीड इट फॉर आवर फर्दर रेफरेंस. प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट. Easy? All right. Now let's move to our next topic. All right. So we need to remember certain things. We need to remember certain points. ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स अगर हम मिस कर जाते हैं देन वी एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स.
We commit severe mistakes and minor at the same time because we forget to remember these points. हम ये point थोड़ा सा भी गड़बड़ याद रख लेते हैं. If at all we skip it, then the entire issue happens. And what is it? What are the points that we need to remember? Please have a look. बच्चों ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. इफ़ एट ऑल यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑन एनीथिंग, प्लीज़ रिमेंबर दीज पॉइंट्स आर योर गोइंग टू बी द सेवियर्स. ठीक है, दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी योर सेवियर्स. प्लीज़ रिमेंबर इट रियली वेल. So the first point that we need to remember is number 1, the tense of reporting verb must never change. ठीक है, क्या याद रखना है बच्चों? सबसे पहला पॉइंट कि भाई हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस must never change. That is it. First point, that is it. रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होना चाहिए. मतलब अगर हम ये वाले स्लाइड की बात करें, दिस सेड विल नेवर चेंज इट्स टेंस. इट विल ऑलवेज रिमेन एज इट इज. लाइकवाइज दिस से विल नेवर चेंज इट्स टेंस. इट विल ऑलवेज रिमेन जस्ट द सेम. फॉर्म बदल सकता है बच्चों, टेंस नहीं बदलना चाहिए. ठीक है, टेंस नहीं बदलना चाहिए. दैट इज इट. दैट इज इट. इजी. All right. So now this is the first point that we need to remember. Now, second is that the tense of quoted speech changes only when, okay, so now here we have cases कि हमारे quoted speech का tense कब change होगा. only when, first, ठीक है, first quoted speech is not a habit. अगर हमारा कोटेड स्पीच हैबिट है तो कोटेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा. ठीक है, अगर हमारे कोटेड स्पीच का टेंस कोई हैबिट है तो उसका टेंस कभी चेंज नहीं होगा. ठीक है, नंबर 1. अब इसका एग्जाम्पल देख लो. She said, I brush every day. क्या ये हमारा कोटेड स्पीच कोई हैबिट है ना बच्चों? ये हमारी हैबिट है ना. अब नाउ इमेजिन शी सेड दैट शी ब्रश्ड एवरी डे एंड शी इज स्टिल अलाइव. तो क्या अब उसने वो हैबिट चेंज कर लिया? अब वो ब्रश नहीं करती है ना. ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमारा कोटेड स्पीच कोई हैबिट हो बच्चों, तो वी आर नेवर चेंजिंग द टेंस ऑफ आवर कोटेड स्पीच. ठीक है, नंबर 1. नाउ नंबर 2, QS is not a universal अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि भाई हम तब टेंस, यहाँ क्या बात कर रहे हैं, द टेंस ऑफ कोटेड स्पीच चेंजेस ओनली व्हेन, द टेंस ऑफ कोटेड स्पीच चेंजेस ओनली व्हेन आर कोटेड स्पीच इज नॉट अ हैबिट. नंबर 1. ठीक है, ये हमने सॉर्ट कर लिया. ओके, वी आर गुड टू गो. नाउ सेकेंड इज व्हेन आर कोटेड स्पीच इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, ऑल्सो देन वी नेवर चेंज द टेंस ऑफ आर कोटेड स्पीच. इजी एग्जाम्पल देखो. He said,
sun rises in the east. चलो बच्चों, अब क्या यहाँ पे अगर हम टेंस चेंज कर देते, सन रोज इन द ईस्ट, नो राइट, अगेन इट वुड बी इनकरेक्ट. यहाँ पे हमें याद रखना है दीज टू थिंग्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट quoted speech changes or experiences the tense change only when quoted speech is not a habit. Second, when quoted speech is not a universal fact. Easy? Done? Alright, take the screenshot because we have a few more points to include. Done? Okay. Now, third point. When quoted speech is not an incomplete future event. तो क्या बात कर रहे हैं कि हमारा जब कोटेड स्पीच है वो कोई इनकम्प्लीट फ्यूचर इवेंट नहीं होगा बच्चों, तब भी उसका टेंस चेंज होगा. अगर वो कोई इनकम्प्लीट फ्यूचर इवेंट है तो टेंस चेंज नहीं होगा. एग्जाम्पल, Ayush said, I will go to Manali in 2026. देखो, is this not an incomplete future event? ये हमारा incomplete future event है बच्चों. जब हम ये बात करें 2026 में, हमें पता है 2026 is yet to arrive, so we are not going to change the tense of this quoted speech as well. Now the most important fourth one. So the fourth point says that the tense changes only when the reporting verb is in past. ठीक है. ऊपर के कंडीशंस के अलावा जब हमारे कोटेड स्पीच का टेंस चेंज की हम बात करेंगे बच्चों, वो टेंस चेंज तभी होगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा. तब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में टेंस चेंज एप्लीकेबल हो सकता है. वो टेंस चेंज नहीं होगा कब? जब हमारा कोटेड स्पीच कोई हैबिट होगा, तब चेंज नहीं होगा. जब वो कोई हैबिट होगा, जब कोई वो यूनिवर्सल फैक्ट होगा, चेंज नहीं होगा. जब वो कोई इनकम्प्लीट फ्यूचर इवेंट होगा तो भी चेंज नहीं होगा. ऑल्सो अगर वो कोई प्रोवर्ब है, ठीक है, कोई ओल्ड सेइंग है, तो भी टेंस चेंज नहीं होगा. ठीक है. चलो, तो अभी उस हिसाब से फर्स्ट वन, ही सेड आई एम ईटिंग, इसका टेंस चेंज पॉसिबल है. चलो देख लेते हैं. सेड, व्हाट इज द टेंस ऑफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब? इट्स पास्ट. मतलब कोटेड स्पीच के टेंस चेंज की पॉसिबिलिटी है. अब बच्चों हमें क्रॉस चेक करना है कोटेड स्पीच का टेंस क्या है और कोटेड स्पीच डिलीवर क्या कर रही है. क्या ये आई एम ईटिंग कोई यूनिवर्सल फैक्ट है? नो. क्या ये कोई हैबिट है? नो. आई ईट एवरी डे इज अ हैबिट, बट दिस इज नॉट अ हैबिट, इसलिए इसका टेंस चेंज पॉसिबल है. थर्ड, ये कोई इनकम्प्लीट फ्यूचर इवेंट है? नहीं है, तो इसका टेंस चेंज पॉसिबल होगा. अब क्या होगा टेंस चेंज वो हम आगे देखेंगे, बट अभी ये वाले पे आओ. आई से कीप इंटरैक्टिंग. ठीक है. तो भाई यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है? प्रेजेंट है. हमने क्या बोला कि हमारे कोटेड स्पीच का टेंस तभी चेंज होगा जब हमारे कोटेड स्पीच का टेंस तभी चेंज होगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो. यहाँ पे हमारा पास्ट में है क्या? तो नहीं है, तो कोटेड स्पीच का टेंस तो नहीं चेंज होगा. अब यहाँ कीप इंटरैक्टिंग की जगह मान लो आई एम ईटिंग ही हो जाता.
ठीक है, ये हमारा इम्परेटिव है कीप इंटरैक्टिंग, तो हम इसको इवेंचुअली डिस्कस करेंगे। बट अभी देखो, आई से आई एम ईटिंग, ठीक है, आई से आई एम ईटिंग, ये हमारा कोटेड स्पीच है। इज दिस अ हैबिट? नो, बट हमें उस तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, यानी हमारे कोटेड स्पीच का टेंस नो चेंज। इजी। सो नाउ व्हाट आर द मेजर टेकअवेज टिल नाउ कि भाई हमारे कोटेड स्पीच का टेंस जब पास्ट में होगा ओनली देन वी नोटिस द चेंज इन कोटेड स्पीच, नंबर 1। नंबर 2, द टेंस ऑफ कोटेड स्पीच चेंजेस ओनली व्हेन इट इज़ नॉट अ हैबिट, हैबिट नहीं होना चाहिए। दूसरा कि भाई कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या बोला हमने कि भाई कोई भी इनकम्प्लीट फ्यूचर इवेंट नहीं होना चाहिए। इजी एवरीवन? अगर इजी है तो कमेंट करो फटाफट से। डन, ये है हमारे पॉइंट्स। बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों के लिए रूल्स इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर। और ये भी कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस का चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा। डन, चलो ऑलराइट। सो अब हम जब टेंस चेंज की बात कर रहे हैं तो हम ज़रा आ जाते हैं टेंस चेंज होगा तो किसका होगा? चेंज इन टेंसेस ऑफ कोटेड स्पीच। कब होगा कोटेड स्पीच का? जब टेंस चेंज हम कर सकेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट, present continuous will change into past continuous। अब चलो इसके लिए भी एक ट्रिक देख लेते हैं, इजी है, नॉट ट्रिक बट हाँ थोड़ा एक आइडियल सा सिचुएशन है। प्रेजेंट सिंपल यानी क्या होगा? V1 या V5, ठीक है, या फिर हमें इसमें इज आर दिख रहे होंगे। लाइकवाइज प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो ऑफ कोर्स इज आर दिख रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़, हैव। हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें, ठीक है बच्चों, जो फॉर्म होते हैं हमारे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो हैज़, हैव प्लस बीन प्लस ING, राइट। पास्ट सिंपल होगा तो V2 हो सकता है, डिड हो सकता है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस होगा तो वॉज, वर। पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो हैड बीन प्लस V4 प्लस बीन प्लस V4, ठीक है। अब इसका कन्वर्जन देखो, इज एम आर होगा, V5 होगा तो उस केस में इट विल चेंज इनटू वॉज वर वाला केस, या फिर V2 में, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, अगेन वॉज वर, ठीक। हैज हैव है तो अब हम इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में, यानी किस में बदल जाएगा बच्चों? ये हैड। हैज हैव विल चेंज इनटू हैड, राइट। अब पास्ट सिंपल है बच्चों, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है अगेन, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी ये भी वापस किस में? हैड, यानी हैज हैव विल चेंज इनटू हैड। इजी। नाउ कमिंग टू पास्ट सिंपल यानी सिंपल पास्ट। So simple past changes into past perfect। बच्चों अब ये past perfect में जब बदलेगा ना, यानी हमारा V2 होगा, एक तो पॉसिबिलिटी, ठीक है। फिर हमारा was were हो सकता है, और likewise हमारे पास did हो सकता है, which is not, ठीक है। did कब? when it is working as helping verb, तो had प्लस V3 हो जाएगा। जब was were होगा, was were changes into had been, ठीक है, प्लस V3। मोस्टली was were के साथ में अगर आपके पास मेन वर्ब आ रहा है तो वो V3 में ही आएगा,
क्योंकि हमारा वो पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर इसके अलावा हमारे पास आ जाता है हमारे डिड एज हेल्पिंग वर्ब, तो वो सिर्फ हैड में शिफ्ट होगा। आई डिड नॉट डू इट, आई हैड नॉट, ठीक है, डन। चलो अब देखो, पास्ट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैड बीन प्लस V4। ये आपके सभी पास्ट में काम लगेंगे बच्चों, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस विल नॉट चेंज, नो चेंज, likewise no change, and shall will change, shall and will would change into would। shall will दोनों ही हमारे would में change होंगे। easy। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। easy, done, easy। चलो all right, so now apart from this we have a few of our other time references which would change again for our QS। वो भी कब, जब हमारा कोटेड स्पीच जो है वो ना हैबिट हो, ना कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो, ना इनकम्प्लीट फ्यूचर इवेंट हो, ना कोई प्रोवर्ब हो, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारा पास्ट में हो। उसके केसेस में ये हमारे एप्लीकेबल होते हैं। बच्चों ये भी ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। इजी, ठीक है। ना अगेन नेक्स्ट, फॉर द चेंज इन अदर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी हमारे जो ये हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं, अगेन ये किसके चेंजेस की बात कर रहे हैं? कोटेड स्पीच के चेंजेस की, कोटेड स्पीच के चेंजेस की हम बात कर रहे हैं। क्लिक कर लो फटाफट। इजी, चलो। So now we are going to head to the next point, and that is the practice session, right everyone? So we are going to begin with the practice session. Today I have decided that I'll be taking up assertive sentences only, ठीक है। जो हमारे assertive sentences है वो लेंगे, और फिर हम next class में जब मिलेंगे तो हम चलेंगे interrogative sentences की तरफ। और बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन देयर इज अ कैच, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं चेंज होगा पर फॉर्म चेंज हो सकता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं चेंज होगा पर फॉर्म चेंज हो सकता है। तो प्रैक्टिस सेशन शुरू करने के पहले ज़रा हम देख लेते हैं। अगर बच्चों हमारे पास सेज टू दिया हुआ है तो इट विल चेंज इनटू टेल्स। तो सेज टू दिया हुआ है यानी स्पीकर भी है और लिसनर भी है, तो हम लोग टेल्स लिख देंगे। लाइकवाइज अगर सेड टू दिया हुआ है, ठीक है, तो सेड टू चेंजेस इनटू टोल्ड, ठीक। अब अगर से दिया हुआ है, से या सेज, तो इट विल रिमेन। ये बेसिक चेंज है, ठीक है। लाइकवाइज अगर सेड दिया हुआ है तो इट विल रिमेन एज इट इज। उसके अलावा जब हम असर्टिव सेंटेंसेस की बात करेंगे बच्चों, जब हम assertive sentences की बात करेंगे, we could make change in the reporting verb ठीक है। Again a reminder, so now what is going to happen if we are
using the different forms of our reporting verb, then in such cases it's either asserted, mentioned, stated, said, etc. ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे फॉर्म चेंजेस होंगे. अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारे आने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हम ज़रा देख लेते हैं. जॉन सेड आई एम वेरी बिजी नाउ. बच्चों सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे कोटेड स्पीच का टेंस चेंज होगा भी या नहीं होगा. लुक एट दिस. जॉन सेड, यस, टेंस चेंज ये एक्सपीरियंस करेगा. ठीक है. नाउ जॉन और आई, तो जॉन स्टेटेड, और अगर आप स्टेटेड ना लिखना चाहें आप लिख दें सेड दैट. ठीक. नाउ आई एम वेरी बिजी नाउ. आई एम वेरी बिजी. एम यानी हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट. इट विल चेंज इनटू, जल्दी देखो, सिंपल प्रेजेंट चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट. ठीक है. तो सिंपल प्रेजेंट दैट he was very busy. now के लिए भी हमने चेंज देखा बच्चों. now will change into then. Easy. See, that was quick, right? Now he said the horse has been fed. now again said tense change होगा, इसलिए he said that the horse, what is the tense? Present perfect. It changes into past perfect. Had been fed. Easy? See? We are always putting up a full stop, no change in that. Please remember that is the conjunction that we are using and we need to use. Please remember that as well. Now, because we do not have a listener stated here, therefore we are going to go ahead with said. Yeah, asserted, stated. अब ये वाले दो question, these two questions are for your practice. Take the screenshot. Done? Done? चलो. Now let's look at this one. He says, are we going to change the tense of the quoted speech? No. Therefore he says that he is writing letters. Easy. Now this is fine. Now look at this one, seventh one, wherein we have a speaker and a listener. Let's have a look at this. He told. बच्चे told हम यहीं पे यूज़ करेंगे. ठीक है. कब? जब हमारे पास speaker और listener दोनों पता हो. He told me, I don't believe you. So now who is this I? He. That he don't is present, right? So don't will change into didn't believe me. It's that easy. Any doubts, everyone? Anyone, any doubts? No? Easy? Okay, now please take the screenshot of the remaining two questions on this screen as well. We'll be taking up the answers of these questions in the next class. Take the screenshot. Done? Alright. So with that, I take your leave. See you in the next class. With that, I take your leave. See you in the next class. And stay tuned. Do not disconnect in between. We are going to meet again on the same platform, Phoenix EDU. All the best, everyone. Believe in yourself because you are the one who is going to seize the day. All the best.